Okay, starting with numerical number 9.3. For the given network, find the current through 4 ohm and 3 ohm. Assume that the cells have negligible internal resistance. Now the current through 4 ohm is I3 and the current flowing through 3 ohm resistance is I2. See here, the current coming is I2 and the current flowing through 4 ohm is I3. So we have to find the value of these two currents. We'll consider these two loops. Why these two loops? If you see, in the first loop we cover both the resistances, that is 4 ohm and 3 ohm, and in the second loop we just have 3 ohm resistance, so it will do. So let's apply Kirchhoff's voltage law in both the loops. First we'll apply in this loop, that is A, F, C, B, A. While coming from A to F, the direction of the current and your direction is opposite. See, the current is travelling upward and you are coming downward. So it will be positive I3 into 4, you have written that. Then while going from F to C, your direction and the direction of the current is opposite, again positive I2 into 3. We have written that from C to B there is no resistance, but from B to A there is a battery, and while coming towards this side positive cross करके हम लोग आते हैं negative पे, so it will be -5. We can write it as equation 1 by taking -5 on right hand side. Now applying Kirchhoff's voltage law in the second loop, that is F, E, D, C, F. Now if you see, there is no resistance on this terminal, so we'll write nothing. But from F to D we have a battery and we are crossing the positive terminal of the battery and coming towards the negative पे आके रुकते, तो it will be -10. We have written that. While going from D to C, the direction of the current is downward. This I1 is travelling downward, but you are going upward, so it will be positive I1 into 4. We have written that. Then while coming from C to F, the direction of the current and your direction, both the directions are same, so it will be negative I2 into 3. We have written that. So we have reached F. This completes the loop. Can I write it like this? 4I1 minus 3I2 and minus 10 goes on the right hand side, so it becomes positive 10. So adding equation 1 and 2, that is 4I3 plus 3I2 is equal to 5 and 4I1 minus 3I2 is equal to 10. By adding, this 2 gets cancelled. So can I write 4I3 plus 4I1 as 4 common, I3 plus I1, and this side 5 plus 10 gives me 15. I'll open the bracket. 4 into I3 plus 4 into I1 is equal to 15. This is your equation 1. Now next we'll see this junction. Why we are looking at this junction? Because this is the junction which connects the 3 ohm resistor and the 4 ohm resistor. So let's look at junction F. Will apply Kirchhoff's current law. Okay, you'll write it in full form. Now at F, the number of current travelling towards the junction is just I1, and the current leaving the junction, no, wait, even I2 is coming towards the junction, and even I1 is coming towards the junction. So I will write it as I1 plus I2 is equal to the current leaving the junction, that is I3. So it will be I3 over here. Now if you see, I have 4I3 plus 4I1. So if I will substitute I1 or I3, it is your wish. You can even substitute I3 as I1, 4I1 plus 4I2, or you can okay, chalo, we'll do that. We'll take I3 as 4I1 plus I2. So 4I1 is equal to 15. Let's open the bracket. This we have obtained from 4. Let's say it as 4. So this, let's open the bracket. 4I1 plus 4I2 plus 4I1 is equal to 15. 4 here, even I1, and even here we have I1, so it will be 8I1 plus 4I2 is equal to 15. That is your equation number 5. Let's see, does it connects with someone having I1 and I2? Equation 2, here we have I1, 4I1, and even here I have 8I1. चलो ऊपर देखते हैं. Here we have 3I2 and here we have 4I2. So any of the equation, we can go with any of the equation. 8I1, but 8I1, then again I'll get I1. नहीं, ये तो इक्वेशन और बढ़ा देगा. चलो देखते हैं, अगर ये वाला लिया इक्वेशन 2 क्या होगा. 4I1. चलो let's take this equation, that is equation 2. Equation 2, adding
इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5, 2 एंड 5 क्या है अपना 5, 8i1 प्लस 4i2 इज़ इक्वल टू 15 और यहाँ पर है 4i1 माइनस 3i2 प्लस 10. चलो 8 एडिंग 8 प्लस 4 इज़ 12i1, 4 माइनस 3 इज़ 1, बड़ा नंबर इज़ 4 उसका साइन, सो दिस गिव्स मी i2 इज़ इक्वल टू 15 प्लस 10 इज़ 25. So can I write i2 is equal to 25 minus 12i1. ये मिल गया हमको i2 का वैल्यू, i2 मिल गया, that is 25 minus 12i1. What else can we do? अरे ये तो और कंफ्यूज कर दिया. चलो एक और चीज़ करते हैं. यहाँ पर हमने i3 सब्स्टिट्यूट किया एज i1 प्लस i2. अब हम लोग i3 नहीं सब्स्टिट्यूट करते हैं, i1 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या होता है. सो 4i3 प्लस 4, i1 विल बी i3 माइनस i2. i1 क्या होगा i3 माइनस i2. सो i3 माइनस i2, ठीक है. यहाँ पर कर रहे हैं इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूशन, इज इक्वल टू 15. So this becomes 4i3 plus 4i3 minus 4i2 is equal to 15. 4i3, 8i3 minus 4i2 is equal to 15. अब क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन करते जाओ बस कहीं से भी. मैं तुम जैसे करते हो ना एग्जाम्स के टाइम पे, सेम वैसे ही सॉल्व कर रही हूँ. दिस बिकम्स योर इक्वेशन 6. अब 5 और 6 को देखो, 5 और 6 को क्या होगा अगर 5 और 6 लिया मैंने तो ऐड कर दिया 5 और 6 को. एडिंग 5 एंड 6, छोड़ना नहीं है ये वाले न्यूमेरिकल्स. 8i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 15, 8i3 माइनस 4i2 इज इक्वल टू 15. दिस गेट्स कैंसल, 8 इज कॉमन. i1 प्लस i3 इज इक्वल टू 15 प्लस 15 इज 30. यहाँ मिल गया हमको i1 प्लस i3, 8i1 प्लस 8i3. ठीक है, और क्या कर सकते हैं. i2 अगर i1 का वैल्यू कहीं से मिल जाए तो काम हो जाए. अगर मैं ये i2 का वैल्यू किसी में सब्स्टिट्यूट कर दूँ, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके देखूँ क्या होता है. चलो वो भी करके देखते हैं. आई नीड अ पेपर. ठीक है, ये सब हमने ट्रायल एंड एरर मेथड करते गए. आई वांट यू ऑल टू डू द सेम थिंग. ये रहा अपना इक्वेशन 2, दैट इज़ 4i1 माइनस 3i2 इज़ इक्वल टू 10. क्योंकि जैसे मैंने टारगेट में देखा है और सिंपल, और फॉर टीचर्स इट इज़ वेरी इजी टू जॉइंट, यहाँ से यहाँ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. वी कैन डू कैलकुलेशंस इजीली, बट फॉर स्टूडेंट्स इट इज़ नॉट ईजी. सो दैट इज़ द रीज़न व्हाट यू विल डू, आई एम गोइंग इन दैट वे. सो हिम्मत नहीं आना एग्जाम्स के टाइम पे, क्योंकि तुम्हारे साथ में भी सेम होने वाला है. 4i1 माइनस 3i2. चलो i2 का वैल्यू तो हमारे पास है, यहाँ पर लगा देते हैं. 4i1 माइनस 3i2 इज़ 25 माइनस 12, 25 माइनस 12i1 इज़ इक्वल टू 10. Oh, this air disturbs me a lot. ठीक है, I have substituted the value of i2, that is 25 minus 12i1, 25 minus 12i1. ठीक है, now just see. 4i1 minus 3 into 25, 3 5s are 15, 3 2s are 6, minus 75, minus minus plus 3 12s are 36, i1 is equal to 10. अरे वाह, देखो 4i1 36i1 हो गया 40i1, 75 यहाँ ले लो तो 10 प्लस 75. अरे वाह 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 वाह. 40i1 इज इक्वल टू 10 प्लस 75 कितना हो जाएगा 85. सो i1 विल बी 85 अपॉन 40. 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, मिलता है 17 अपॉन 5.
और कैंसिल करके देखो, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ओके 1 बचा, पॉइंट लगा दो, 10 हो जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 2 बचा, पॉइंट की वजह से 20, फिर 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 4 बचा, पॉइंट की वजह से 40, 8 5 ज़ा 40, I1 मिल गया 2.125 एम्पियर, I1 मिल गया। देखा कितना हमने घूमा, किधर किधर से घूमे हम, किधर किधर क्या क्या सब्स्टिट्यूट किए हम, फिर जाकर हमको मिला, है ना। तो हिम्मत नहीं हारना। I1 की वैल्यू मिल गई, पुट कर दो, I2 मिल जाएगा। पुट करो यहाँ पर। I2 क्या है? I2 इज़ 25 माइनस 12 I1, ये रहा 25 माइनस 12 I1। तो 25 माइनस 12 I1 कितना मिला हमको? I1 मिला है 2.125, दैट इज़ 25 माइनस 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.125 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 0 5 प्लस 5 10, 2 2 प्लस 4 5, 4 प्लस 1 5 एंड 2, नंबर 1 2 3, 1 2 3, यहाँ आया 25.5, 25.5। तो ये क्या मिलेगा हमको? ये तो मिलेगा माइनस 0.5। I2 हमको मिला माइनस 0.5 एम्पियर। I2 माइनस में क्यों मिला? अब यहाँ अगर तुम लोग देखो, सो I2 इज़ फ्लोइंग फ्रॉम C to F, बट अगर ये माइनस मिला है मीन्स I2 इज़ फ्लोइंग फ्रॉम F to C। नेगेटिव मीन्स I2 इज़ फ्लोइंग फ्रॉम F to C। अच्छा, I2 का वैल्यू मिल गया, हमको फाइंड आउट क्या करना था? I2 ऑब्टेन। I3 चाहिए, यहाँ देखो हमारे पास ये भी तो है। सो व्हाट यू विल से, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ठीक है। I1 का वैल्यू है हमारे पास, दैट इज़ 2.125 प्लस I2 का वैल्यू कितना आया? माइनस 0.5। यार माइनस 0.5 इज इक्वल टू I3। सो प्लस माइनस माइनस 2.125 माइनस 0.5 इज इक्वल टू I3। सो 2.125 माइनस 0.5, माइनस करो 5 माइनस, यहाँ कुछ नहीं है, 0 है। 5 माइनस 0 इज़ 5, 5 माइनस 2 इज़ 2, दिस 1, 11 माइनस 5 इज़ 6, 1.625 is the ampere, is the value of I3 and I3 is flowing through 4 ohm resistance। यही फाइंड आउट करना था। सो यू अंडरस्टूड व्हाट ऑल थिंग्स वी डिड। पहले हमने इक्वेशन 1 निकाली, किरचॉफ लॉ फर्स्ट लूप में लगा के, सेकंड लूप में किरचॉफ लॉ लगा के सेकंड इक्वेशन निकाली, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करके एक इक्वेशन आ गया, जिसको ओपन करा तो हमको इक्वेशन 3 मिल गया। उसके बाद में हमने बोला चलो ये I3 की वैल्यू हमने फिर किरचॉफ सेकेंड लॉ जंक्शन पे लगा दिया, क्योंकि इस जंक्शन से दोनों रेजिस्टर निकल रहे थे, तो हमको ये मिल गया। फिर हमने I3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, इसको सॉल्व किया, I3 की वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व किया तो इक्वेशन 5 मिला। फिर हमने इक्वेशन 5 देखा और इक्वेशन 5 के बाद हम आए, अब दूसरा बार क्या किया, इक्वेशन 3 में अब हमने I1 की वैल्यू पुट कर दी। I1 की वैल्यू क्या है? I3 माइनस I2। यहाँ पर I1 की वैल्यू पुट कर दी, पहले I3 की वैल्यू पुट करी थी, अभी I3 को ऐसे ही रखा, I1 की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करके ये इक्वेशन मिले। ये दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, 5 और 6 को, 5 और 6 को ऐड किया तो ये मिला 8 I1 प्लस I3 इज इक्वल टू 30। ये फ्लॉप हो गया, कुछ नहीं कर पाए, फ्लॉप आइडिया हो गया। फिर हम लोग ने बोला नहीं है, 5 और 6 को कुछ नहीं करते हैं, 5 को लेते हैं और ऊपर 3 और 2 में से या 1 में से कुछ करते हैं। तो 3 को तो हाथ नहीं लगाया, क्योंकि 3 से ही हम 5 पे पहुँचे थे, है ना। 3 में ही सब्स्टिट्यूट किया था I3 की वैल्यू, ये I3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था और 5 तक पहुँचे थे, तो 3 को टच नहीं किया। अब 5 या तो 2 ले लेंगे और या तो 1 ले लेंगे, तो हम लोग ने सेकेंड वाला इसलिए लिया। फिफ्थ वाले में देखो प्लस 4 I2 और इसमें माइनस 3 I2 और इसमें प्लस 3 I2, तो प्लस 3 I2 ले लेते तो काम नहीं बनता था, तो हम लोग ने माइनस 3 I2 वाला ले लिया, क्योंकि 4 और माइनस 3 1 देगा हम लोग को।
तो हम लोग ने दोनों को यहाँ पर ऐड कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को, किनको 4i2 वाले को और 3i2 वाले को ऐड कर दिया, तो 4 - 3, तो यहाँ पर हमको i2 मिल गया। ठीक है, तो i2 की वैल्यू यहाँ से निकल गई और ये i2 की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दी, तो उससे हमारे को i1 का वैल्यू मिल गया। बस i1 का वैल्यू मिला, हमने यहाँ पुट की, i2 मिल गया, तो यहाँ पर हम दोनों को ऐड कर गए, i1 + i2, तो हमको i3 मिल गया। अरे बहुत आसान था ये, देखो हमने यहाँ पर i2 की वैल्यू पुट की थी इक्वेशन 2 में। समझा? तो हिम्मत नहीं हारना है। इट इज़ डिफ़िकल्ट बट हिम्मत नहीं हारनी।